हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रूपेंद्र आज क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय यूजिंग द वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी and also by using the scalar quantity is called potential. What is electric potential? Flow of charge is similar to flow of liquid, say water, or flow of heat. Consider two vessels A and B connected by a tap. When the tap is opened, water flow from B to vessels A. Even though there is only less water in B, the flow of water is determined by the level difference in the two vessels and not the quantity of water in the vessels. So we can say here, the flow of charge from one charged body to another depends upon the quantity is called electric potential. What is electric potential? Electric potential is that conditions which determine the direction of flow of charge from one point to another. Zero potential. Concept of zero potential. The potential of earth is taken as zero potential because the size of earth is so large that the change in potential due to the addition of charge to the earth or removal of charge from the earth may be ignored. So we choose the potential of earth is zero. कॉन्सेप्ट के लिए इधर ध्यान रखिए, मैंने यहाँ समझाया है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के लिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल and positive charge flow from high potential to low potential. Measurement of potential. It means definition of potential. The electric potential at a point in an electric field is measured by the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electric force of the field. Let W be the work done in bringing a test charge Q naught from infinity to the point under consideration. Then the potential at the point is given by V is equal to W upon Q naught. ये definition है potential की. W upon Q naught means W क्या है इधर, वर्क डन है. सोर्स चार्ज की जो फील्ड होती है उस फील्ड में टेस्ट चार्ज को हम इनसाइड द फील्ड लाते हैं और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है वो वर्क W है. देन पोटेंशियल B इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट. W वर्क है, वर्क का यूनिट जूल एंड Q नॉट मीन्स चार्ज, यूनिट चार्ज, यूनिट इसका कूलम है. सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम एंड इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन SI system. In SI system, unit of electric potential is volt. So B is equal to unit of W upon unit of Q naught, joule per coulomb, and 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb.
dimensional formula of electric potential, V is equal to W upon Q naught. W is equal to वर्क है W तो mL2T माइनस 2 अपॉन चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT. सो V इज इक्वल टू mL2A माइनस 1 T माइनस 3. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फार्मूला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है ये. टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड ए नेगेटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल, when work is done against the electric force in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field, then potential at that point is said to be positive potential. Negative potential, when work is done by the electric force in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field, the potential at that point is said to be negative potential. Potential difference, what is potential difference? Here at point O, Q is source charge, Q source charge है जिसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट कंसिडरेट किए हैं A एंड B, और डिस्टेंस A और B का dr वेरी स्मॉल डिस्टेंस है. पोटेंशियल एट पॉइंट A VA एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इज़ VB, और A और B में जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमको काउंट करना है, डिफाइन करना है. इसको ऐसे समझो कि पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए, पोटेंशियल को काउंट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को इनसाइड द फील्ड्स वन पॉइंट टू अनदर मूव कराते हैं, और जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है. ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं. यहाँ पर F इक्वल टू क्यू नॉट ई आपको ये बताता है कि जो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर उसके अगेंस्ट ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है. F इक्वल टू क्यू नॉट ई. F इक्वल टू क्यू नॉट ई मीन्स यहाँ पर अगर फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रख देंगे तो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन को, जाने की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा. F इक्वल टू क्यू नॉट ई. जैसे ही इनसाइड द फील्ड कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स की वैल्यू आप F इक्वल टू क्यू नॉट ई आप पढ़ के आए हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, ये पोटेंशियल से ही मिलता जुलता है, कहीं कोई ज़्यादा उसमें डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. तो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन. एक्चुअली पोटेंशियल क्या है? रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज. ये भी वही है. The potential difference between 2 points in an electric field is equal to the ratio of work done in moving a test charge from one point to the other point to the value of test charge. So we can say here potential difference between 2 points A and B is VB minus VA is equal to W upon Q naught. यहाँ वर्क W क्या है? वर्क डन है. वर्क डन टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में जो भी वर्क डन किया जा रहा है, A टू B, और टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है उसका रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B कहलाता है. वेयर W वर्क बी डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम द पॉइंट A टू B against the repulsive force F equal to Q naught E acting on it. Potential at a point due to a point charge, ये concept बहुत ही important है for exam views. Consider a point charge Q is placed at point O, and inside the its field
point P is taken at distance r from the source charge, means सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया और हमको यहाँ पर पोटेंशियल चेक करना है। इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट है, टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से लेंगे इनसाइड द फील्ड। लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O। आप डायग्राम में देखें, इनफाइनाइट से हम अंदर इनसाइड द फील्ड लाए और यहाँ पॉइंट A कंसीडर किया जिसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से x लिया हुआ है, x। ये डिस्टेंस कितनी है, x है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट। जैसे ये पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज लेंगे उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग OA, कूलम्ब फोर्स जिसको हम कहते हैं। द स्मॉल अमाउंट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। हम स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा सा वर्क और स्मॉल डिस्टेंस तक टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, उसको काउंट करना है। देन dW इक्वल टू F इंटू dx। आप जानते हैं वर्क की डेफिनेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए थीटा जो बनेगा वो 180 डिग्री होगा। तो dW इक्वल टू F dx cos 180। आप ये स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हैं, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। सो dW इक्वल टू माइनस F dx, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सो dW इक्वल टू माइनस F dx। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and direction of displacement are opposite, so we take theta is equal to 180 degree. Work done in bringing the test charge Q naught from infinity to the point P। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन है वो हम कंसीडर करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ dW इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल F इंटू dx, then integral of dW is W, so W is equal to minus, put the value here F 1/4 pi epsilon naught Q naught upon x square dx, and W is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q naught limit integral infinity to r x minus 2 dx। You already know x n dx का इंटीग्रल क्या होता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड लिमिट इन्फिनिटी अप टू r। सो W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हियर माइनस 1 अपॉन x लिमिट इन्फिनिटी अप टू r। Put the value of limit, so W is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon upper limit r 1 upon r minus 1 upon infinity, and W is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon r. But we know potential V is equal to W upon Q naught, definition of potential V. So V is equal to, we find here 1/4 pi epsilon naught Q upon R volt. This is the derivation of potential at a point due to point charge.